I was wondering which language I should speak. Whether it should be a folk or the language of the future. All the eminent dignitaries, respected His Grace Archbishop Anil Kuttoji, respected Bishop Deepak Taroji, His Grace all the former rectors, principals, students, and also the present members of the faculty and those who have come from the field. My heart is immersed in the performances and we also have a graceful presence of the representative from the Embassy of Vatican City, which I was to visit but somehow missed that occasion due to some problem. It is really that I am thankful to Father Pierre John for giving me this opportunity. It's a pleasure and privilege to be here, and I don't just congratulate but salute you all for taking this path of equity, justice, integrity, and humanity through the Vidya Jyoti for 50 years of your struggle, reconstruction, education, and also the working with the oppressed classes. It's really a wonderful performance which has not just brought before us the journey, but the manzil as well. ये जो हमारे सामने अभी प्रस्तुत किया गया, वो केवल एक रास्ता नहीं दिखा रहा था जो पार करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन तक, लेकिन आगे की दिशा और आपकी मंजिल भी, आपका विजन, आपकी विचारधारा भी यहाँ प्रस्तुत की गई है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सलाम करती हूँ। साथियों, विद्या ज्योति नर्मदा आंदोलन के साथ एक जुड़ी हुई संस्था है। We always had fathers and I remember the meetings we had with your grand and open infrastructure of the National Alliance of People's Movements. The first meeting that discussed my paper on Jana Samsad, the People's Parliament, was held in Vidya Jyoti, which I cannot forget. Friends, when it is the education which really aims at transcending one's life, one's own individual, family, and environs around, जब हम लोग शिक्षा से खुद से बाहर निकलते हैं और हमारी पारिवारिक दायरे भी बढ़ते हैं, तो इसमें फादर टीके जॉन जैसे आप सभी लोग जो एक प्रकार से व्यापक समाज के साथ जुड़े रहते हैं, उनके ही लिए आज अभिनंदन करने का दिन है। और ये एक खुलापन और खुलेपन में भी एक फोकस, एक लक्ष्य, एक प्राथमिकता उन समाज के तबकों पर जो कहे जाते हैं गरीब, उसे नहीं पसंद आता है, वो धनिक होते हैं श्रम से, कुशलता से और अपने प्राकृतिक संसाधनों से जो वो ही बचाते हैं। And hence when you are really focusing on these sections of our population, we know how
valuable it is, the kind of contribution that you have been making for not less than 50 full years. It's not that easy. I'm sure you might not have presented all the challenges that you faced. It is not just moving from Asansol to Darjeeling to Delhi. It is moving beyond all the challenges, which may be full of accusations, questioning, and even in the present circumstances, attacks which we cannot accept sitting idle. It is therefore necessary that when Father Pedro's quote that a faith is something that does justice, I would say Father Pedro would have also said that it is the faith that also fights for justice. That is a need of the hour. Because you know that there are 10,000 religions in the world. And even in India, not less than 8 in the core. But if you include Prakriti Dharma of Birsa Munda, 10,000 धर्म पूरे दुनिया में है. 8 धर्मों की बात हरदम भारत के परिप्रेक्ष्य में होती है, लेकिन अगर आप बिरसा मुंडा का प्रकृति धर्म भी इसमें जोड़ते हैं तो फिर उसे पता नहीं हम धर्म के नाम पर आगे चलने की दिशा और आज उसकी दशा, इसका एनालिसिस, इसका विश्लेषण जो थियोलॉजी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो कैसे थोड़े से समय में इस संवाद में लाया जाए. आज उसकी जरूरत है, क्योंकि धर्म के ही नाम पर जो अधर्म फैलाया जाता है उसको हम अहिंसा के रूप में, अहिंसक और सत्याग्रही के रूप में जब सामने खड़े होकर सवाल करने की हिम्मत करते हैं, तब विद्या ज्योति जैसे एक एक इंस्टीट्यूशन का कार्य एक बहुत अहम बनता है. इसलिए विद्या ज्योति ने जो एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की है, अहिंसक शांति सेना, उनको हम लोग सलाम करते हैं. आज जरूरी है इस प्रकार की सेना की. The force that Vidya Jyoti has created, it is not just building a generation, not just building a community of your students, but building future of this country. And that is really to be valued. हम देख रहे हैं कि आज faith, which is a pursuit of gods, goddesses, no doubt, but also of worship, rituals, etc. ये निश्चित कि आज ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमको हर धर्म का पालन करने, धर्म की आइडियोलॉजी समझकर, थियोलॉजिकल अप्रोच से आगे बढ़ते हुए धर्म का परिवर्तन भी करने, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही स्वयं किया था, उसकी मंजूरी देती है, उसकी आजादी देती है. और इस पर जब सवाल किए जा रहे हैं तो कैसे हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिनके नाम पर ये संविधान दान नहीं किया गया, प्रस्तुत किया गया है, खुद को भी खुलेपन से देखने के लिए उसको कैसे बचाएंगे, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है. और वो सवाल भी हमारे बेस्ट ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स, एक्टर्स, सभी ने, डायरेक्टर्स मिलकर यहाँ प्रस्तुत किया. इसके लिए उनको मैं जिंदाबाद करती हूँ. आज हम जो लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, इसी को कुचला जा रहा है. एक कोई कॉरपोरेट का एनालिसिस सामने आता है तो देश हिल जाता है, लेकिन केवल ए से शुरू करके नहीं चलेगा, ए से जेड तक जाना पड़ेगा. और फिर उनका पूरा नेटवर्क
जो आज इस अर्थव्यवस्था को ही नहीं, इस देश की राज व्यवस्था को भी पकड़ के रखा है. The alliance between the politics and economics, which is now exposed, but you cannot just stop at A. It is A to Z. Those billionaires who have earned 6 times the property during lockdown, when large percentage of our own population, hard-working, toiling masses, those who have preserved the natural resources, including oxygen for us, without which many of our brothers and sisters died, they were not even earning 3,000 rupees per month. And when it is very clear that last 8 years we have seen that 44 lakh crores rupees worth tax concessions were given to those who are not just crony capitalists but criminal capitalists, as I would call them. And also 30 lakh crores rupees worth debt relief was offered. Why is it that the farmers and laborers have to struggle, and with whom your students and your members of this family have to stand with? मैं आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग से ही आई हूँ. कल रामलीला मैदान में हजारों या लाखों किसान, मजदूर, पशुपालक, आदिवासी, जो भी किसानी मानते हैं हम लोग, वो एकत्रित हो रहे हैं. आप सबका स्वागत होगा उस किसानी महापंचायत में. मैंने तो कहा आज मीडिया को कि वो महापंचायत मतलब एक छोटे से गांव की नहीं है, वो एक जन संसद है जिसको आज इस देश में जीवित करना, रखना और उसी में सही प्राथमिकता और निर्णय तय करना जरूरी है. It's not going to be just a Mahapanchayat, means a village or a few village level forum. It is in a kind of people's parliament. I would consider this also the same. Having the number of representatives of different sections, different visions, different ideologies who come together, and then they take democratically the decisions, as we are shown how the Vidya Jyoti has performed and taken various decisions, not only to move from one place to another, but to move from one section to another, who Vidya Jyoti family always supported. That is the democratic process which we are missing today in this country. You know that it's not just hunger index, not just indices, but the practices which really matter. Whatever number we are going down to, we know that 80 crore of our people are facing hunger because 5 kg free grains do not fill stomachs of one family for 1 month. हम देखते हैं कि हमारा भूख के आधार पर निर्देशांक नीचे गया है, लेकिन केवल उससे नहीं तो 80 करोड़ लोग इस देश के आज भी भूखे हैं. 5 किलो उनको देने से भी उनका पेट 1 महीने तक एक परिवार का नहीं भरता है. ऐसी स्थिति में राइट टू फूड, all the laws which have to be necessarily in the context of the constitution, but those laws are being weakened, those laws are going amended. Within 20 hours, 21 laws were amended during lockdown, the pandemic situation, when the parliament was not really functioning. और आज भी क्या हो रहा है? आज भी अगर इन भूखे और प्यासे लोगों की दखल विद्या ज्योति जैसी इंस्टीट्यूशन लेती है, अपने विद्यार्थियों को सेंसिटिव करती है, संवेदनशील बनाती है, पर सरकार अगर संवेदनशील नहीं है और संवादशील भी नहीं है, it doesn't have either sensitivity, sensibility, or even a pro-dialogue approach. That is something like an assault on democracy. और इसीलिए हम सब लोगों को आज खड़े रहने की जरूरत है. हम देख रहे हैं कि जल जंगल जमीन पर जीने वाले
किसान ही नहीं, जिन जिन का मैंने अभी उल्लेख किया, हमारे फिश वर्कर्स भी, वो क्या भुगत रहे हैं। विलिंजम पोर्ट इन केरला, your colleagues and comrades really stood up with the fish workers to save Earth, the planet Earth, which was referred to by a small little kid here. And then we all were asked a question whether we will stand up and fight non-violently, democratically, truthfully to save the planet Earth. The answer has to be yes, come what may. कितने भी केसेस फाइल करें, कितने भी झूठे एलिगेशंस लगाए, लेकिन हम लोगों को इस जल जंगल जमीन को, इस पृथ्वी को बचाने के सिवाय खुद को बचाना ही संभव नहीं है। 1500 साइंटिस्ट, वैज्ञानिक from all over the world are not just referring to climate change that is discussed more in Paris and Copenhagen and Glasgow. And then Greta Thunberg, a young activist for not just a Friday but future, has to say that what happens in these summits, it's all blah, blah, blah. It's not a joke. It's something that is very seriously to be taken cognizance of. और इसीलिए आज यहाँ जो आसमान और तारे और भूमि की बात हो रही थी, आज नदियां सूख रही है, आज नदियां प्रदूषित है, आज नदियों पर बने बने बड़े बड़े बांधों से 4 टुकड़े एक एक नदी घाटी के किए जा रहे हैं और भूजल भी खत्म हो रहा है। जोशीमठ जब धंसता है, when Joshimath sinks, where we were staying only to provide relief after that Kedarnath tragedy, we feel shattered. Himalaya चेतावनी दे रहा है. Himalaya is warning us and challenging us. The same is to an extent happening to the Western Ghats, and same will happen to the Satpuras and Sahyadris and Nilgiris too. आज ऐसी स्थिति में हम लोग जब प्रकृति बचाने की बात करते हैं तो प्रकृति के साथ जीकर हमारी भूख मिटाने वाले पानी बोतल में भर के 55 पैसे पर लीटर लेकर 18 रुपए और 20 रुपए को बेचने वाले हमें नहीं बचा सकते। हमें बचा सकते हैं जो इस प्रकृति के साथ जीते आए हैं, और वो आदिवासी है, वो दलित है, वो कैटल ग्रेजर्स है, वो फार्मर्स है, वो फार्म लेबरर्स है, विमेन इंक्लूडेड। अगर ये हम ख्याल रखते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ा स्कोप है। It's an open ground where we cannot just play, but we can certainly I'm asked to wind up. I never thought that I would be given such a short time. But you have enough time and scope, that's what I'm saying. And that is to really follow each of these goals, to feed everyone according to Article 47 of the Constitution, so that there are no thousands of deaths that are occurring till today, every day due to malnourishment. You have to fight to save rivers and save groundwater as well, because it is not just ease of doing business, it is the ease of living life, which includes livelihood, which includes education, which includes health, and not just as charitable services, but as the human right, legal right, and constitutional right that every citizen, voter citizen, as Advocate Upendra Bakshi, the legal luminary, always called it when he pleaded the case on Narmada. Friends, but we know that today the forest is lost because there is diamond under Bakswaha forest and there is coal under Hasdev Aranya forest in Chhattisgarh. हर जगह जंगल के नीचे क्या है ये देख रहे हैं। जंगल जिन्होंने बचाया है उन आदिवासियों को हक नहीं दे रहे हैं। एक एक जंगल दूसरे कंपनी को दे सकेंगे, इसलिए 1980 के कानून के नियम 2022 में बदलकर पार्लियामेंट में पेश किए हुए हैं।
अभी तक हिम्मत नहीं हुई है उसको पास करने की, लेकिन वो अगर होंगे तो ग्राम सभा को भी पूछे नहीं जाने वाला है. What is Gram Sabha? What is Gram Panchayat? If it is local self-government, just to talk about and give slogans of Atmanirbharta is not enough. Every village community which will function democratically and take cognizance and the rightful occupation of all the natural resources and human resources will certainly bring in an alternative technology which would be decentralized, whether in water management or energy generation. That is possible. The world is now fast moving towards that end, and it has to if the humanity needs to be saved. But on the other hand, गीधों की नजर है जमीनों पर, गीधों की नजर है जंगल पर, गीधों की नजर है पानी और नदियों पर. It is not just development, it is the paradigm which is bringing in vulgar inequity and leading to not just occupation forcible, but also so-called legal acquisition and transition, transferring the resources to whom? To those who do not need it. If 1% of our population has 40% of property, why can't we tax them with proper wealth tax and inheritance tax up to 50%, but wealth tax at least up to 2%, which will bring into the state exchequer not less than 17.5 lakh crores, and that will feed people, that will denounce privatization and help the state, compel the state to perform its duties which are given to others who believe in profit over people and profit over nature. And that will be according to the Constitution. This Constitution has so many directive principles I need not talk about. But coming to your sector of education, what is happening today is Googleization. And that is Googleization also. We know that it has become exclusive. Many Adivasis, Dalits, as per the new Brahmanism, I would call it, are out of the real inclusive educational sector. And that we need to be really saved. We have our Jeevan Shalas run for last 30 years. 6,000 Adivasi boys have passed. But how many can we reach up to? Although they are real sportsmen and they are equally good in Kala and Krida and Natya, but their performances are very different. We were dancing throughout night on the 5th in the Holi when 80 drums were beaten throughout the night with thousands of men and women dancing. So their culture may be having a different kind of arts, but that cultural diversity which needs to be saved and which shows us the path of not only equity but also simplicity and self-reliance is something that I'm sure Vidya Jyoti will offer as the path to all its students through its intellectual faculties who are also giving a visionary ideology and promoting that. I know that when we are for this kind of struggle, the rulers are not allowing that to happen. टुकड़े टुकड़े गैंग हम नहीं हैं, वो कर रहे हैं. और ऐसे टुकड़े, ऐसा विभाजन कैसे किया जाता है, ये आपकी कम्युनिटी ने छत्तीसगढ़ में भुगता है. अभी अभी इंदौर में देखा है. आपने 50 साल तक ये बचा के रखा, यही एक बहुत बड़ी बात है. कल क्या होगा, ये सोचने का समय आया है. क्योंकि कहीं अंदर घुसकर कुछ अन्य गॉड्स एंड गॉडेसेस के नाम लिखना, ये रामलीला चल रही है. हम लोग मानते हैं कि सर्वधर्म समभाव की जो भावना आज आप व्यक्त की है, वही भावना 50 साल से आपने आगे बढ़ाई है. और इसका महत्व बहुत ही जरूरी है. Whether it is Prophet Muhammad, Bhagwan Mahavir, whether it is Jesus Christ, any dharma guru you take, no one has ever said kill others or attack others.
and still it is the violence used through various means and strategies that is imposed on the community, which is community that loves peace, peace and peace. And hence it is necessary that we really reach out to the gaon and gali. We reach out to the people. हम लोग सब गांव गली में पहुंच जाए, हम लोग नफरत मिटाने की पूरी कोशिश करें, हम लोग धर्म के नाम पर अधर्म होता है तो उसको रोके। जब छत्तीसगढ़ में हमारी टीम फैक्ट फाइंडिंग के लिए गई, मैंने देखा कि कोंडा गांव में कलेक्टर और एसपी की भी नजर अलग थी, सोच अलग थी। और जब मुख्यमंत्री को मिले तो उन्होंने कहा, ताई अभी आपने इंटरिम रिपोर्ट किया है, उतना ही काफी है, और कुछ आगे करना नहीं तो वो उछल के आएंगे। नहीं, वो उछल के नहीं आएंगे। मैंने कहा आप अगर सही भूमिका लेते हैं तो कभी भी हमला नहीं होगा उनके घरों पर जिन्होंने स्वेच्छा से कोई धर्म स्वीकारा है। क्या होता है धर्म? जीने की राह होती है। बुद्ध कुछ देता है तो क्राइस्ट कुछ देता है, तो प्रॉफेट मोहम्मद कुछ देता है, तो विवेकानंद कुछ कहते हैं। ये सभी को एकत्रित लाकर आगे बढ़ना, और इसके लिए ही वायलेंस को मिटाना, उसके सामने हिम्मत से खड़े रहना। वायलेंस कैन नॉट बी एंडेड विथ वायलेंस, बट नॉन वायलेंस से, अहिंसा से हिंसा का प्रतिकार करना, ये आज हमारा फर्ज है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजनीति इसके साथ जुड़ी है, वोट बैंक्स इसके साथ जुड़ी है, और नोट बैंक्स कैसी बनती है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, वो तो कहने की जरूरत नहीं है। हमको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सभी का अंदाजा लेना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। यही गॉड्स एंड गॉडेसेस बनकर बैठे हैं उनके पद पर, हम लोग उनको गॉड्स एंड गॉडेसेस नहीं मानना चाहिए। हमारे आदिवासियों की देवेदानी तो पहाड़ में है, पत्थर में है, वृक्ष में है, जिसका वर्णन एक न एक प्रकार से पूरी भाषा मुझे समझ नहीं रही थी, लेकिन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मुझे लगता है कि इसी दिशा में आज निश्चित हर प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, education is for inculcation of values, imbibing the attitude, skills, but also giving a vision and a मंजिल। यही शिक्षा का मतलब है। अगर तो वो शिक्षा धरातल से जुड़ी होकर हमारे कष्टकरियों से, जो चल रहे थे लॉकडाउन में 1700-2000 किलोमीटर हमको उपवास करना पड़ा, रोकना पड़ा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर, उनको बिठाया एक एक ट्रेन में और एसटी में बिठाकर वो फिर वापस आए हैं। ये जो बहुत ही अद्भुत स्थिति अर्थव्यवस्था की आई है, श्रीलंका तक आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन G20 जब सेलिब्रेट हो रहा है तो कॉर्पोरेट पावर कितनी बढ़ने वाली है, और उसका इस्तेमाल हमारे रूलर्स कैसे करने वाले हैं, ये सोचना ही नहीं, ये सवाल खड़े करना। विद्या ज्योति में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, तो निश्चित हो जाएगा और उसी से कुछ बदलाव आएगा इस देश के अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था में, ये हमारा विश्वास है। आप राजनिवास मार्ग पर है, आपके पड़ोसी कौन है आपको पता नहीं है, जिन्होंने मुझ पर हमला किया था और जिनके खिलाफ आज भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है, उसकी वीडियो है। आपके सेड्रिक प्रकाश जी, फादर प्रसाद चैको, सभी उसके विटनेसेस हैं, और उन्होंने कहा था कि ये फैटल अटैक था। 20 साल तक मेरी ही क्रॉस ली जा रही है, उससे भी डरती नहीं हूं, और डर नहीं पर निडरता से सवाल करती हूं कि यह है कौन जो ऐसे पदों पर बिठाए जाते हैं, जो कोर्ट में हार जाते हैं, हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, हमारी शाला चली नहीं 30 साल चलने के बावजूद। ये सब धर्म, जाति, पंथ, प्रांत और लिंग भेद के साथ इस देश को एकजुटता के साथ आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करने वालों में से है, और उनका वही प्रॉफिटियरिंग का मामला इस अर्थव्यवस्था को बर्बाद करता है। जब हम सवाल खड़े करते हैं कि बड़े बांध अमेरिका ने 1000 तोड़ दिए, यूरोपियन कंट्रीज ने 4000 से ज्यादा तोड़ दिए, तो आज गंगा अशुद्ध, नर्मदा अशुद्ध, सब नदियां बर्बाद होती रही है, केवल यमुना नहीं। ये कैसे हम मंजूर करें? तो वो उनकी नींद उड़ जाती है।
उनको एक एक विकास के प्रतीकों के रूप में जो खड़े करने होते हैं, जिसका लाभ भी नहीं मिलता है, जिसकी कॉस्ट हजारों करोड़ से बढ़ती है, 10 गुना या 20 गुना, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। जैसे सरदार सरोवर का उदाहरण मैं आपको बताऊं तो आप चकित हो जाएंगे कि कच्छ के एक किसान को पानी नहीं मिला, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को बिजली केवल मिलने वाली थी, वो नहीं मिली, तो वो अभी पैसा मांग रहे हैं। तो ये पैसे की देन घेन, ये मनी और मार्केट का फुलना, ये बाजार का बढ़ना, ये हमारे जीवन की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आत्मरंग यहाँ प्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया, उसी पर कहीं ना कहीं हमला कर रही है, न केवल हमारे शरीरों पर। आज बिल्किस बानो जो भुगत रही है, आज उसके बलात्कारियों को जो सम्मान हो रहा है, आज कहीं एक दलित बच्चे को राजस्थान में शिक्षक मास्टर के पॉट से पानी पिया इसलिए मारा जाता है, हम क्या चुप बैठ सकते हैं? लिंचिंग होता है, हम क्या चुप बैठ सकते हैं? हम नहीं बैठ सकते। इसलिए आखिरी में इन पूरे आर्टिस्ट ने जो सवाल हमारे सामने किया है, क्या आप हमारे साथ खड़े रहेंगे? हमने जोरदार जवाब देना चाहिए, हाँ हम लड़ेंगे आपके साथ अहिंसक पद्धति से और जीतेंगे भी। और ये जो धर्म के नाम पर ईश्वर अल्लाह की बात करती है, मैं बस 2 लाइन गीतों की सुनाकर आपकी रजा लेती हूँ, माफी मांगते हुए कि मैंने ज्यादा समय लिया है। पर जो मन भर के आज हमें विचार दिया गया और इतिहास हमारे सामने विद्या ज्योति का रखा गया, तो भविष्य का भी एक नजरिया आपके सामने रखने में मुझे थोड़ा ज्यादा समय लेना पड़ा। तो एक तो गीत है, ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों, कदम कदम पर सरहद क्यों है, सारी जमीन तो तेरी है, सूरज के फेरे करती है, फिर भी इतनी अंधेरी है, इस दुनिया के दामन पर इंसान के लहू का रंग है क्यों, ईश्वर अल्लाह। और जब हम लोग ये ऐलान दूसरों को और खुद को कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपना कर्तव्य पार करना चाहिए, जो संविधानिक कर्तव्य है। हमको 2 दुनिया में से कौन सी दुनिया हमें मंजूर है, उसको चुनना चाहिए। तभी हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने के लिए हिम्मत से खड़े होंगे। हम न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और इसलिए 2 लाइनें और, एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। यही हम जुग्गी वासियों को बताना है, हमारे कष्टकरियों को बताना है, जिनके खिलाफ कानून लाए जा रहे हैं। हम कहते हैं नफरत छोड़ो, इंसानों से प्यार करो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो, एक हमारी एक है उनकी, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर इंसान को आबाद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर इंसान को आबाद करो। विद्या ज्योति विद्या के प्रकाश में यही विजन, यही मंजिल देखकर ये पूरी बड़ी परिवार के साथ आगे बढ़ेगी, इस पर विश्वास व्यक्त करते हुए मैं आपकी रजा लेती हूँ।